ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. نو میٹر ہاؤ مچ گڈ پیرنٹنگ یو ہیو ڈن, اگر اللہ ہدایت دے گا تو بچوں کو ہدایت آئے گی, ادروائز ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. کہتے وہ گھر جس میں سورہ البقرہ نہیں پڑھی جاتی وہ ایک بنجر گھر ہے, وہ ایک کھنڈر ہے. یعنی اتنی سیریس بات ہے. سورہ البقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی شیطان نہیں آ سکتا وہاں پہ, شیطان بھاگ جاتا ہے وہاں. کوئی یہ کہے کہ مجھ پر جادو ہوا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کوئی کہہ سکتا ہے مجھ پہ کالا جادو ہوا ہوا ہے, وہ سورہ البقرہ پڑھے. اس کے بعد بھی اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں مجھے کوئی شفا نہیں مل رہی یا ابھی تک کچھ ایشوز ہیں, ریسٹ ایشورڈ جادو نہیں آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو یہ پڑھ کر سوتے تھے. ان 2 آیات کے بارے میں آتا ہے جس نے یہ 2 آیات پڑھ لی رات سونے سے پہلے, اس کے لیے وہ آیات کافی ہو گئیں, اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن از ناٹ اے بک آف انٹرٹینمنٹ. ڈو ناٹ ایکسپیکٹ انٹرٹینمنٹ اینڈ شغل میلہ فرام دا قرآن. تھوڑا زندگی میں سیریسنس لائیں, ہر چیز میں شغل میلہ اچھا نہیں ہوتا. قرآن مجید اگر آپ سے کوئی پوچھے جی اس میں ہے کیا, اس کا بیسک میسج کیا ہے, تو دیکھیں وہ 4 ہیں. نمبر 1 توحید, ہو از اللہ. نمبر 2 فکر آخرت, ڈے آف ججمنٹ پہ بات کرتا ہے قرآن. نمبر 3 حقوق اللہ, ڈیلنگز بٹوین مین اینڈ اللہ. نمبر 4 ڈیلنگز بٹوین مین, حقوق العباد. یہ 4 میسج. باقی اس میں اور موضوعات بھی ہیں, اس میں سائنس کی کچھ باتیں ہیں, لیکن وہ مقصد نہیں ہے. قرآن کا مقصد ہے گائیڈنس دینا. قرآن از ناٹ اے بک آف سائنس, اٹس اے بک آف سائنس. ڈاکٹر ذاکر نائک کا بڑا مشہور جملہ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ آیات کی کتاب ہے, اس میں آیات ہے, سائنس ہے اللہ کے. تو اب دیکھیں دس سالوز دیٹ کویسچن. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں قرآن جو ہے نا وہ خود سے نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ آپ گمراہ ہو جاؤ گے. یہ ایک ہمارے سوسائٹی میں بڑا مشہور ایک عقیدہ ہے, بلیف ہے, ٹھیک ہے. اور قرآن کو پڑھنے کے لیے جو ہے نا آپ کو اتنے علوم چاہیے اس سے پہلے کہ آپ قرآن پڑھ سکو. دیکھیں دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں, قرآن اٹھاؤ پڑھنا شروع کر دو, یہ بھی ایکسٹریم ہے. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ نہیں قرآن کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ, گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن کی ٹرانسلیشن نہ پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے, یہ بھی ایکسٹریم ہے. درمیانی راہ کیا ہے؟ قرآن کا بیسک میسج ہر کوئی سمجھ سکتا ہے, اس کے لیے کوئی علوم کی ضرورت نہیں ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. یہ سورہ ساری سمجھنے کے لیے آپ کو کون سے علوم کی ضرورت ہے؟ سمپل میسج ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا جو روزے آخرت کو جھٹلاتا ہے وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے, وہی تو جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا. فویل للمصلین, تباہی ہے ان لوگوں کے لیے, ان نمازیوں کے لیے جو نماز ڈیلے کر کے پڑھتے ہیں, جو نماز میں سستی کرتے ہیں یا دکھلاوے کی نماز. آپ مجھے بتائیں سمجھ آ رہا ہے میسج؟ اس کے لیے کون سی آپ کو علوم کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں ایسے موضوعات قرآن میں ہیں جن کے لیے آپ کو اسکالرز کو بھی اپروچ کرنا پڑے گا, تفسیر کو بھی دیکھنا پڑے گا. تو یہ دونوں ہی ایکسٹریمز ہیں, آپ درمیان میں رہیں. بیسک میسج انشاءاللہ قرآن کا آپ سمجھ لیں گے جب آپ قرآن کو پڑھیں گے. باقی کچھ موضوعات آپ کو شاید سمجھ نہ آئیں, اس کے لیے اپروچ تفسیر اینڈ انشاءاللہ علماء سے رابطہ کریں, اور عربی سیکھ لیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. تو درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے. بہرحال یہ 4 میسیجز آپ کو سمجھ آ جائیں گے جب آپ قرآن پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن کا پرپس جیسے میں نے بتایا وہ ہے ہدایت, گائیڈنس. اس کے علاوہ قرآن کا پرپس جو ہے وہ نہ سائنس سمجھانا ہے نہ سائیکالوجی سمجھانا ہے. آپ نے گائیڈنس کے لیے قرآن کو اپروچ کرنا ہے. سٹوریز آف دا قرآن. قرآن مجید خود اپنی سٹوریز کے بارے میں کہتا ہے, اینڈ ایچ اسٹوری وی ریلیٹ ٹو یو او پروفٹ فرام دا نیوز آف دا میسنجرز سو دیٹ وی میک فرم یور ہارٹ. بہت خوبصورت بات. قرآن اپنے بارے میں خود کہتا ہے کہ قرآن کی جو سٹوریز ہیں نبی وہ ہم آپ کو کیوں سناتے ہیں, تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ کچھ دکھوں سے, سیڈنس سے, غم سے گزر رہا ہے, لاسٹ ہے, سمجھ نہیں آ رہی لائف میں کیا کرنا ہے, ہی اور شی شوڈ ٹرن ٹو دا سٹوریز آف دا قرآن. میں آپ کو ایک سٹوری بتاتا ہوں جس سے کتنا کچھ اخذ ہوتا ہے, کتنا کچھ اخذ ہوتا ہے. سورہ یوسف. سورہ یوسف کے لیسنز کیا ہیں؟ اور سورہ یوسف انٹرسٹنگلی کب نازل ہوئی؟ طائف کے واقعے کے بعد. اس کی ٹائمنگ چیک کریں. 3 واقعات ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں فل آف سیڈنس. شیب ابی طالب, ویری سیڈ انسیڈنٹ. حضرت خدیجہ کی ڈیتھ, بہت سیڈ. اور طائف کا واقعہ, سبحان اللہ, unimaginable پین. اس کے بعد اللہ نے گفٹ کیا سورہ یوسف کو. تو سورہ یوسف میں غم کا علاج ہے, پہلی بات, ٹھیک ہے. اس کی ٹائمنگ دیکھیں آپ. سورہ یوسف کے کیا لیسنز ہیں؟ سورہ یوسف teaches us to have a good father-son relationship,
पेरेंटिंग लेसन है सूरह यूसुफ में, आपकी सोच है। इसी तरह द एनवियस आई इज रियल, ये एक लेसन मिलता है हमें। यू कैन रीच न्यू हाइट स्ट्रेट आफ्टर अ सेटबैक, कितनी मोटिवेशनल बात। आपको बड़े से बड़ा सेटबैक आ जाए, आप हाइट पे जा सकते हो। दिस इज करेज, कुरान टीच करता है। योर ओन चिल्ड्रन कैन लाई टू यू, कुरान टीचेस अस दिस, ठीक है। इससे क्या साबित होता है? हिदायत अल्लाह के हाथ में। नो मैटर हाउ मच गुड पेरेंटिंग यू हैव डन, अगर अल्लाह हिदायत देगा तो बच्चों को हिदायत आएगी, अदरवाइज हिदायत अल्लाह के हाथ में। रिजेक्ट सिन टू कीप योर ब्लेसिंग्स, ये एक लेसन मिलता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गुनाह को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा अल्लाह जेल मेरे लिए बेहतर है, और फिर देखें बदले में अल्लाह ने कितनी ब्लेसिंग्स दी। इसी तरह सूरह यूसुफ टीचेस अस दैट द सिक डू रिकवर, द मिसिंग डू रिटर्न, ट्रायल्स आर ईज्ड एंड द सैड बिकम हैप्पी बाय द विल ऑफ अल्लाह। सूरह यूसुफ पढ़ लें, ठीक है, कम से कम सूरह यूसुफ समझ लेनी चाहिए इंसान को। इसी तरह अभी तो आप मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी खोलें, उसको अनपैक करें। यंगस्टर्स के लिए अलग लेसन है, लीडर्स के लिए अलग लेसन है, टीचर्स के लिए अलग लेसन है, पेरेंट्स के लिए अलग लेसन है। सुभान अल्लाह, कोई रेवोल्यूशन कोई लाना चाहता है उसके लिए अलग लेसन है। तो इट इज़ फुल ऑफ लेसन्स। मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी, अयूब अलैहिस्सलाम की स्टोरी अनपैक करें। इसी तरह आप जो है वो नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी अनपैक करें। हर स्टोरी आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है। देखें, आप ज़करिया अलैहिस्सलाम की स्टोरी को अनपैक करें, उम्मीद ही उम्मीद है। तो कुरान इज़ ऑल अबाउट यू, आपके हालात के बारे में कुरान मजीद, ठीक है। तो कुरान की स्टोरीज। इसके बाद एक और आपको फैसिनेटिंग बात बताता हूँ, बस 5 मिनट में क्लास वाइंड अप करते हैं। रिंग कॉम्पोजिशन, ये असल में आर्गूमेंट आपको द इटर्नल चैलेंज जो बुक मैंने रिकमेंड की है ना, उसमें बहुत ही खूबसूरत आर्गूमेंट है। रिंग कॉम्पोजिशन जो है ये बेसिकली लिंग्विस्टिक्स के जो लोग हैं उन्हें पता है रिंग कॉम्पोजिशन क्या होता है। बेसिकली इट इज़ अ कॉम्पोजिशन ऑफ समथिंग, यानी एक स्टोरी या एक एसे या एक नैरेटिव या एक नरेशन। रिंग कॉम्पोजिशन में ये होता है कि जो इंट्रो और कंक्लूजन होता है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है, जो मेन मैसेज होता है वो बीच में होता है। इट फॉर्म्स लाइक अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। आयतल कुर्सी में रिंग कॉम्पोजिशन में आपको विटनेस कराता हूँ। इसीलिए कुरान मजीद का जो चैलेंज है ना, इस जैसी किताब बनाकर दिखाओ, नहीं बन सकती। इस तरह के उसूलों पर किताब बना के दिखाओ, नहीं बन सकती। रिंग कॉम्पोजिशन आपको चेक कराता हूँ। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह देयर इज नन वर्दी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट ही, द एवर लिविंग, द एवर वॉचर। आयतल कुर्सी एक ही आया है, लेकिन उसमें कुछ जुमले मैं सेपरेट करके दिखा रहा हूँ। पहला जुमला, ठीक है, ला ताखुजुहु सिनतु वला नौम, नीदर ड्राउजीनेस नॉर स्लीप ओवरटेक्स हिम, ये दूसरा हम पकड़ लेते हैं, ठीक है जी। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, टू हिम बिलोंग्स व्हाटएवर इज इन द हेवंस एंड द अर्थ। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो इंटरसीड कर सकता है, सिफारिश कर सकता है उसके सामने, एक्सेप्ट बाय हिज परमिशन, ठीक है। आगे क्या है, याअलमू मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, उसे पता है कि तुम्हारे पीछे क्या है, इनके पीछे क्या और इनके आगे क्या है। आगे क्या है, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम व हुवल अलीयुल अज़ीम। ये हैं वो सेंटेंसेस जो 9 बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें रिंग कॉम्पोजिशन आपको चेक कराता हूँ। बीच में क्या है, उसे पता है तुम्हारे पीछे क्या है और तुम्हारे आगे क्या है। अब इस सेंटेंस के पीछे को गौर करते हैं, उसमें क्या थीम चल रही है। नंबर 1 थीम क्या है, अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, वो हई है, वो क़य्यूम है। आइए पहले को लास्ट जुमले से मैच करते हैं। लास्ट क्या है, ये देखें, ये एरो किसके साथ मैच हो रहा है, लास्ट के साथ। लास्ट क्या है कि वो ही इज द मोस्ट हाई, द मोस्ट सुप्रीम। दोनों की थीम मैच कर रही है, दोनों की थीम मैच कर रही है। अच्छा, ला ताखुज़ु सिनतु वला नौम, ना नींद ना ऊंग उसे आती है। आए इसको सेकंड लास्ट, सेकंड जुमले को सेकंड लास्ट के साथ मैच करते हैं। क्या है, और वो थकता नहीं है। क्या दोनों थीम मैच कर रही है, क्योंकि ना वो सोता है ना उसको ऊंग आती है, और इसका ताल्लुक किससे, थकने से, ना थकने से। तो सेकंड लास्ट जुमला क्या है, वो थकता नहीं है, उनकी हिफाजत में, ठीक है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, उसी के हैं जो आसमान में है चीजें और जमीन में। थर्ड लास्ट सेंटेंस क्या है, उसका थ्रोन, उसका जो अर्श है वो कहाँ फैला हुआ है, जमीन और
आसमान मिल रहा है कि नहीं थीम, उधर भी ज़मीन व आसमान की बात हो रही है और थर्ड लास्ट जुमले में भी ज़मीन व आसमान की बात, अल्लाह की बादशाहत की बात हो रही। फोर्थ, हु इज़ देयर दैट कैन इंटरसीड मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही इल्ला बिमा शाअ, ये चौथी बात है। और आए इसको फोर्थ लास्ट से कंपेयर करते हैं, और कोई भी नहीं है जो इसके इल्म का अहाता कर सके सिवाय उसके जिसको वो खुद इजाजत दे। दोनों में किस चीज का जिक्र है? उसकी इजाजत का, परमिशन का। दिस इज रिंग कॉम्पोजिशन। और बीच में क्या है कि अल्लाह को पता है पीछे भी क्या है आगे भी क्या है। पीछे जो थीम है वही आगे थीम है, तो बीच में वो चीज आ गई। हर सूरह इस तरह डिजाइन हुई है, आप हैरान हो जाएंगे। ये जो है लिंग्विस्टिक के एक्सपर्ट्स ने पूरा काम किया हुआ है रिंग कॉम्पोजिशन ऑफ कुरान के ऊपर। अभी तो मैथमेटिकल मैंने आपको मिरेकल्स नहीं बताए, कुरान के जो मैथमेटिकल मिरेकल्स हैं, यानी जो यौम का लफ्ज है डे का, वो 365 बार एग्जैक्ट इस्तेमाल हुआ है। और अय्याम, जो यौम की जमा है अय्याम, वो 30 बार जो है आया हुआ है। 30 दिन होते हैं ना एक मंथ में तकरीबन। और जो आप हैरान हो जाएंगे, मंथ 12 बार आया हुआ है कुरान। शहर मेरे ख्याल मंथ को कहते हैं। बहरहाल 12 बार कुरान में मंथ का तज़किरा, और 12 मंथ्स होते हैं। अभी तो हम इस पे नहीं आए, ठीक है। तो कुरान इज फुल ऑफ मिरेकल्स। आखिरी चीज, कुछ सूरतों की आपके सामने वर्चूज रखता हूं टू मोटिवेट अस। सूरह अल बकरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, डू नॉट मेक योर हाउसेज ग्रेव्स, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। फॉर द शैतान फ्लीज फ्रॉम हाउस इन विच सूरह अल बकरा इज रिसाइटेड। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु क्या कहते हैं? कहते हैं वो घर जिसमें सूरह अल बकरा नहीं पढ़ी जाती वो एक बंजर घर है, वो एक खंडर है। यानी इतनी सीरियस बात है। सूरह अल बकरा जिस घर में पढ़ी जाती, शैतान नहीं आ सकता वहां पे, शैतान भाग जाता है वहां से, ठीक है। दूसरी हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रीड सूरह अल बकरा फॉर रिसाइटिंग इट रेगुलरली इज अ ब्लेसिंग एंड फॉरसेकिंग इट इज अ कॉज ऑफ रिग्रेट एंड द मैजिशियंस कैन नॉट विथस्टैंड इट। अब देखें, कोई ये कहे कि मुझ पर जादू हुआ है, ठीक है, कोई कह सकता है मुझ पे काला जादू हुआ है, वो सूरह अल बकरा पढ़े। उसके बाद भी अगर वो समझता है कि नहीं मुझे कोई शिफा नहीं मिल रही या अभी तक कुछ इश्यूज हैं, रेस्ट एश्योर्ड जादू नहीं आप पे, फिर मेंटल हेल्थ इशू है, कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट। मेंटल हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, जादू वाली ऑप्शन निकल गई है, रेस्ट एश्योर्ड। सूरह अल बकरा के आगे नहीं टिक सकता जादूगर, सूरह अल बकरा के आगे नहीं टिक सकता शैतान, सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं हमने 40-40 दिन सूरह अल बकरा पढ़ लिए फिर भी जादू है। अल्लाह माफ करे, यानी ये तो मिसट्रस्ट है फिर उस हदीस पे। जादू नहीं है, फिर मेंटल हेल्थ इशू है, फिर यू शुड कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट। और हो सकता है मेंटल हेल्थ इशू, इसमें कोई मजाक की बात नहीं है, हो सकता है यू शुड कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट, सीधी सी बात है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हुज़ैफा रज़ियल्लाहु से मरवी हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 2 आयात गिफ्ट की गई हैं, कहां से? फ्रॉम द ट्रेजर्स बीनीथ द थ्रोन, अर्श के खजानों में से। और वो आयात है, आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना रात को ये पढ़कर सोते थे। इन 2 आयात के बारे में आता है, जिसने ये 2 आयात पढ़ ली रात सोने से पहले, उसके लिए वो आयात काफी हो गई, उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यानी दे विल प्रोटेक्ट हिम। बहुत खूबसूरत बात। इसी तरह ये बड़ा जबरदस्त वाकया, एक सहाबी सूरह अल बकरा पढ़ रहे थे, तो उन्होंने देखा उनका घोड़ा एकदम डर गया और एक क्लाउड को उन्होंने नीचे आते देखा। आई थिंक ओपन एयर में पढ़ रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई उन्होंने जाके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम पढ़ते रहते तो तुम फरिश्तों को देख लेते। सूरह अल बकरा के खास ये बारे में आता है। वैसे तो ओवरऑल कुरान जहाँ पढ़ा जाएगा, फरिश्तों का वहाँ पे नजूल होगा, फरिश्ते सुनने आते हैं उसकी तिलावत। ये देखिए सूरह आले इमरान, सुभान अल्लाह, इसमें 5 दुआएं, आखिरी 10 आयात की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने रब्बाना रब्बाना हमने इसको एनसर्कल किया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, रब्बाना मा खलकता हाजा बातिला सुब्हानका फकीना अज़ाबन नार, रब्बाना इन्नका मन तुदखिलिन नार फक़द ख़ज़ैतहु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। ये 5 बार है रब्बाना 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 रब्बाना। और बाद में अल्लाह क्या कह रहा है? फ़स्तजाबा लहुम रब्बुहुम, कि उनके रब ने उनकी दुआ कबूल की। तो कुछ लोग ये कहते हैं ये 5 नमाजों की तरफ एक इशारा है कि 5 नमाजें तुम पढ़ोगे मैं आंसर करूंगा, तुम 5 बार मुझे पुकारोगे दिन में, आई विल आंसर यू। तो ये भी कुरान का आप देख लें कॉम्पोजिशन और स्टाइल, सुभान अल्लाह। इसी तरह सूरह मुल्क एंड सूरह सजदा। सूरह मुल्क के बारे में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान की एक सूरह है जिसकी 30 वर्सेस हैं, जो कि एक शख्स, एक इंसान की सिफारिश करेगी
यहां तक कि उसको बख्श नहीं दिया जाता, लड़ाई करेगी। और वो है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, ये याद कर ले। सूरह मुल्क तो आपको याद होनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने याद की। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सहाबी ने फरमाया कि अल्लाह के नबी नहीं सोते थे जब तक सूरह मुल्क की तिलावत नहीं कर लेते। इसी तरह सूरह सजदा के बारे में आता है कि सूरह सजदा की भी जब तक तिलावत, सूरह सजदा इज चैप्टर 32, सूरह मुल्क इज चैप्टर 67। एक्टिंग ऑन द कुरान, साहबा फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें 10 वर्सेस सिखाते थे और हम अगली 10 वर्सेस तब तक नहीं सीखते थे जब तक उन 10 पे अमल ना कर ले। तो ये साहबा का शौक था कुरान पे अमल करने के लिए। हजरत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल में सूरह अल बकरा सीखी। इससे क्या मुराद है सीखी से? इससे मुराद है अमल किया। 6 साल लगे सूरह अल बकरा पे अमल कर। तो कुरान को पढ़ते हुए ये इंटेंशन करें मैंने इसमें अमल करना है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वार्निंग दी उन लोगों के बारे में जो कुरान समझते नहीं। ड्रीम में देखा कि एक शख्स का जहन्नम में सर कुचला जा रहा है। पूछा ये कौन है शख्स? तो फरमाया, जवाब मिला ये वो शख्स है जो कुरान को एक्ट नहीं करता, रिफ्यूज टू एक्ट अपॉन द कुरान। और ये वो है जो नमाजों के टाइम पे सो रहे होते हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे होते, दे स्लीप थ्रू द नमाज। तो खुदा न खास्ता ये बहुत बड़ा अजाब है। इसी तरह आप देखिए आखिरी बात, कुरान मजीद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शिकवा, क़यामत वाले दिन एक शिकवा करेंगे हमारे नबी, वो शिकवा कुरान ने हमें पहले ही बता दिया। वो सूरह फुरकान की आयत नंबर 30 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं वक़ाल रसूल, उस दिन रसूल कहेगा या रब्बी, ए मेरे रब, इन्ना कौम इत्तख़ुज़ू हाज़ल कुरआना महजूरा, बेशक मेरी कौम ने कुरान को अपने पीठ पीछे रख दिया था। ए अल्लाह, मेरी कौम का डाउनफॉल, कहने का मकसद ये इनका डाउनफॉल इसलिए आया था क्योंकि इन्होंने कुरान मजीद को अपने पीठ पीछे रख दिया था, इन्होंने कुरान को समझना छोड़ दिया था, इन्होंने कुरान से रहनुमाई लेना छोड़ दी थी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी वेकअप कॉल है। इंशाल्लाह आज हम तहिया करके जाएं। देखें कुरान मजीद को जो इंसान अपने घर में आम करेगा, उसकी टीचिंग्स को आम करेगा, कुरान क्लास अरेंज करेगा, कुरान के साथ कनेक्ट होगा। और यंगस्टर्स जो यहाँ बैठे हैं, प्लीज़ मेरी आप सबसे एक इल्तिजा है, कुरान इज़ नॉट अ बुक ऑफ एंटरटेनमेंट। डू नॉट एक्सपेक्ट एंटरटेनमेंट एंड शुगल मेला फ्रॉम द कुरान। थोड़ा ज़िंदगी में सीरियसनेस लाएं। हर चीज़ में शुगल मेला अच्छा नहीं होता। समटाइम्स पेरेंट्स गिव मी दिस फीडबैक कि सर आप ना थोड़ा शुगल मेला भी लगाया करें। देखें कुरान मजीद में शुगल मेला नहीं लगाया जा सकता। मेरे स्टूडेंट्स थे स्किल में, मैंने उन्हें कुरान पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। 3 साल में स्किल स्कूल है एक, स्टूडेंट्स कुरान पढ़ लेते हैं। मैंने उन्हें डे 1 क्लियर किया था कि अगर तो सही में इंटरेस्टेड हो फिर तो इस क्लास में बैठो, वरना यू कैन गो आउट। मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट एंटरटेनमेंट फ्रॉम मी। कुरान इज नॉट हेयर टू एंटरटेन यू, ठीक है। कुरान मजीद एक सीरियस अल्लाह का कलाम है और कुरान मजीद इज हेयर टू ग्रूम यू। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमने कुरान को अपना टाइम देना है। इंशाल्लाह वी हैव टू गिव आवर हार्ट एंड सोल टू द कुरान, ठीक है। हमने कुरान के आगे सबमिट करना है और हमने कुरान से सॉल्यूशंस फाइंड करने इंशाल्लाह ताला। और सुभान अल्लाह, जो यंगस्टर्स कुरान को गो थ्रू एक बार कर लेंगे, मैं कहता हूँ कि वो प्रोडक्ट बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मुझे रश्क आता है उन सम ऑफ माई स्टूडेंट्स फ्रॉम स्किल अल्हम्दुलिल्लाह जिनको मैंने कुरान पढ़ाया, अब मुझे रश्क आता है। वो हाफिज़ भी हैं, लम्ज़ में हैं, सम ऑफ देम हाफिज़ भी हैं माशाल्लाह, कुरान तफसीर पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएट जब हुए थे स्किल से अल्हम्दुलिल्लाह। सीरा उनको आती है, सीरा पर अबूर हासिल है और फर बोल रहे होते हैं जब उनसे कोई चीज़ डिस्कस की जाए। टीन शो पर आए हैं मेरे साथ कई स्टूडेंट्स, उनमें से आपने देखा होगा टीन शो। आप देखें उनके फिंगर टिप्स पे कुरान के रेफरेंसेस होते हैं। दे आर टेलिंग कुरान में यहाँ ये लिखा हुआ है, यहाँ ये लिखा हुआ है। तो सोचे 17-18 साल का लड़का कुरान पढ़ा हुआ है, तो कुरान को आम करें अपने घरों में इंशाल्लाह और ज़रा इंटरेस्ट लें कुरान क्लासेस